assisted reproductive. Now, I had some experience of a few of the assisted reproductive technologies. So maybe if you have some questions relating to them, then I will be able to answer them. But other advanced reproductive technologies or other advanced assisted reproductive technologies, since I don't have the practical experience, maybe I may not be the right person to answer your query on the advanced reproductive. If you ask me something about ICSI or ICSI, maybe I have a little bit of experience, but if you ask me something about other advanced technologies, maybe I may not be the right person to answer to your query. So, assisted reproductive technology. Assisted reproductive technologies is a term used to describe treatments and procedures which involve the manipulation of reproductive cycles, gametes, or embryos to establish pregnancy by artificial or partially artificial means. Several generations of such technologies have been developed for use in domestic animals, including artificial insemination, multiple ovulation and embryo transfer, in vitro embryo production, transvaginal oocyte recovery, cloning, transgenesis, and many more. It is beyond my expertise to include all of them. It is beyond my expertise. और अगर एकदम बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में कहें कि assisted reproductive technologies क्या होती है, so any technique in which you assist in reproduction, that is an assisted reproduction. Maybe if you are inducing ovulation, that is also an assisted reproduction. Now, so these are some of the. अब ये लोग तो पता नहीं इसको जेनेटिक इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ रिप्रोडक्शन में कहाँ से भी आप जैसे असिस्ट कर रहे हैं तो वो एक ART होगी. इवन इफ यू आर इंड्यूसिंग ओवुलेशन, दैट इज आल्सो एन ART. So they classify it as artificial insemination, multiple ovulation and embryo transfer, in vitro fertilization, transgenics, nuclear transfer, sperm sexing, embryo sexing, cloning, and maybe many more. मैं अपनी पहली क्लास में ना प्रोडक्शन की जब भी BDSC के स्टूडेंट से पहली बार रूबरू होता रहा तो उनको कहता रहा हूँ कि भैया प्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन मेनी ऑफ द अदर फील्ड्स. इसलिए नहीं कि मैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, दो रीजंस. पहली रीजन तो ये कि फार्मर को पता है कि देयर कैन नॉट बी प्रोडक्शन विदाउट प्रोडक्शन. तो सबसे इम्पोर्टेंट पहली बात तो ये है. और दूसरी बात ये है कि वर्ल्ड वाइड द फोकस ऑफ रिसर्च comes somewhere on the reproduction. Clones, transgenic, stem cells, xenotransplant, ये तो जो भी ह्यूमन बेनिफिट के लिए जो एनिमल में चेंजेस किए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट है. इसलिए प्रोडक्शन सीम्स वेरी इम्पोर्टेंट. तो इसलिए नहीं है कि मैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, बट बिकॉज द फार्मर रियलाइज कि अगर उसकी गाय भैंस नहीं जाएगी तो दूध नहीं, there cannot be production without production. इसलिए उसको खांसी वांसी आ रही है, अगर गाय को परवाह नहीं करेगा, लेकिन अगर वो 12 महीने से जा नहीं रही तो उसके कान खड़े हो जाएंगे कि यार ये तो ना तो गैपिंग हो रही है, ना जा रही है, ना यूट्यूब में आ रही है. तो इस वजह से इम्पोर्टेंट. Now these are some of the world. This table shows the first successful AI was performed by Lazarus Balendani in 1884 in the dog. In 1890, first successful embryo transfer was performed by Walter Heath in rabbit.
In 1950, Prima was the first calf born following embryo transfer. In 1951, Frosty was the first calf born after AI with frozen seed. देखिए 1949 में जब खोज ने ग्लिसरॉल का इन्वेंशन किया, इस टर्म को हम अगर जो डाइल्यूटर है उसमें ग्लिसरॉल डाल दें तो उसको फ्रीज करें तो उसकी एक्टिविटी में देख सकते हैं. दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट. और 1949 का फ्रीज वाला सीमन जब फौज ने किया, उसके बाद का फ्रीज वाला सीमन आज भी अवेलेबल. सो मोर देन 4 हो गए और 33 हो गए. 73 years have been grown. And in 1959 was successful in vitro fertilization in the rabbit. And Frosty 2 was the first calf born after transfer of a frozen embryo. And Virgil was the first calf born after in vitro fertilization. And first transgenic livestock by pronuclear injection was born in 1985. And उसको आप सभी जानते हैं, डॉली, और उसके बाद पॉली, पता नहीं कौन कौन. The first mammal, a sheep produced by somatic cell nucleus transfer using adult donor cells. और उसके बाद पॉली, उसके बाद पता नहीं कौन. Coming to India, the first IVF calf born was Pratham, named Pratham. Was born in 1990 in India, Karnal. And then the first Sahiwal calf born in March 7, 2012, given the name Bully. First buffalo calf born by cloning was Garima. And then a kid calf, a bunny buffalo, a kite variety. Now, it was, as I said earlier, in 1949 में और खोज ने ग्लिसरॉल की डिस्कवरी की, जिससे कि स्पर्म्स को फ्रीज करें तो लंबे टाइम तक उसकी वायबिलिटी मेंटेन हो सकती है. और ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी. उसका एक चेला था, उसने उसको कहा भैया मैं बाहर जा रहा हूँ. तो ऐसा तक वो सीमन पे काम करता था, ट्रायल प्रिजर्वेशन पे. तो जो भी प्रोटोकॉल यूज करता था फेल हो जाता, फिर भी कंटिन्यू रिसर्च. तो उसने अपने चेले को कहा भैया मैं बाहर जा रहा हूँ, तो पीछे से ये मिला के सीमन को फ्रीज करो. उसने भाई ने फ्रीज कर दिया. फ्रीज करके जब वापस खोज आया तो उसने उसको देखा, यार कमाल हो गया, मैं क्या मिलाया? सर आप कह के गए थे कुछ मिलाया. ये नहीं मेरे को बता कौन कौन सी शीशी बताया इसने. तो उसने जब शीशी बताई उसने कहा यार इसका तो मैंने तेरे को कहा ही नहीं था, पर तूने कमाल कर दिया. एंड in his biography he has mentioned the name of his student who accidentally used glycerol instead of something else, and that led to a big discovery. और सही पूछो तो हमारे वेटरनरी साइंसेज में हमारे पास फार्मर को देने के लिए एआई के अलावा कुछ भी नहीं. वो तो बताइए, मेरी जानकारी बताइए. एग्रीकल्चर में सीड्स है, ये है, वो है, फर्टिलाइजर है, हमारे पास कुछ भी नहीं है. सो इट्स अ बिग डिस्कवरी. इट इज अ बिग डिस्कवरी which has changed the world. Artificial insemination is one assisted reproductive technology which has changed the entire world. Holstein Friesian का जो lactation record है ये jump कर रहे हैं. तो and even in many other countries, artificial insemination is one technique which has brought in a major revolution. A survey of 109 countries in 1999, published in Livestock Production Science in 2002, indicated that there were 648 semen collection centers.
registered and 1635 sleeping bags. More than 40,000 bulls were housed in these SCCs and 264 million doses of semen were produced. 95% people. Approximately 75% of the semen doses originated from the Boss variety. International movement of semen were rather important, with close to 20 million doses exported in 1998. A total of 110.4 million post-inseminations were. Now, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की अगर आपको डाटा चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ डाटा इंडिया का डाटा भी मिल जाएगा। कि कितने जो है बुल्स यहाँ पर रजिस्टर्ड है और कितने ए ग्रेड है, कितने बी ग्रेड है, कितने सी ग्रेड। एंड देन यू कैन आल्सो फाइंड द डाटा रिलेटिंग टू the number of doses produced, number of inseminations, everything. Then the second technique relates to the oocyte cryopreservation, और इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ह्यूमन सब्जेक्ट्स में है, जहाँ पर मान लीजिए कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है उसको और इस समय जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, तो उसके oocytes को रिट्रीव करके और प्रिजर्व कर देते हैं। बाकी जब बाद में इसकी स्थिति नॉर्मल हो जाएगी तब oocytes को फर्टिलाइज करके हम जो है डिपॉजिट कर देंगे, तो उससे प्रेगनेंसी हो जाएगी। Oocyte cryopreservation, also known as egg freezing, involves the freezing and storage of mature eggs for future use. और ये हो सकता है मान लो किसी लेडी को कैंसर हो, किसी एक ओवरी में कैंसर हो, कुछ हो, something of that sort, maybe uterine cancer, तो यूट्रस में से वो कैंसर रिमूव करेंगे, उससे पहले oocytes को क्रायोप्रिजर्व कर लेंगे और बाद में उनको फर्टिलाइज करके जब यूट्रस नॉर्मल हो जाएगा तो प्रेगनेंसी के लिए ट्रांसफर। Then the most popular technique खासतौर से जो ऐसे यूज में और ICR के सिस्टम में वो है मल्टीपल ओवुलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। मल्टीपल ओवुलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, the idea of multiplying female characters and understanding the ovarian physiology led to the moat programs। हुआ क्या एक्चुअल में 80s में जो यूरोपियन ड्यूअल पर्पस की ब्रीड की कैटल थी वो बहुत डिमांड में, और जब कैटल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे तो बड़े इंपोजिशंस होते थे, क्वारंटाइन मेजर्स होते थे, डिजीज कंट्रोल के लिए बहुत सारी चीजें होती थी, तो उस समय ये बहुत पॉपुलर हुआ एम्ब्रियो ट्रांसफर। इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग द काउज यू जस्ट इंपोर्ट द एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो इज परवियस टू many microorganisms। The zona pellucida of the embryo is impervious, impervious to many of the microbes। तो उससे आसानी हो गई, एक तो डिजीज इधर से उधर नहीं आई और हेप्टी आपको इतनी मोटी गायें ट्रांसपोर्ट नहीं कर। So that led to the popularity of embryo transfer in dairy cattle। Embryo transfer in food animals began in 1930s, but it was not in 1950s that successful embryo transfer was reported in cattle and pigs by Jim Rawson at Cambridge, England। The first commercial embryo transfers in United States were done in the early 1970s। अब एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में और डिटेल्स हमारा क्योंकि एक लेक्चर अलग से है इन विवो एम्ब्रियो प्रोडक्शन,
उसकी बात हम बाद में कर लेंगे। We talk of other issues. Then there is another assisted reproductive technology, that is embryo bisection. कि लोगों ने सोचा कि ट्विंस को हम अगर अलग अलग ट्विंस को अलग अलग यूट्रस में ग्रो करें तो क्या इफेक्ट आता है, whether they remain the same or there will be some difference or something like that. तो उन्होंने सोचा कि एम्ब्रियो को बाइसेक्ट कर लिया जाए। अब एम्ब्रियो बाइसेक्शन जो है वो एक मोलुलर स्टेज के एम्ब्रियो को लिया जाता है और उसको बीच में से काट दिया जाता है। तो ये माइक्रोस्कोप पे फिटेड असेंबली होती है। इस पे मैंने थोड़ा बहुत काम किया, तो ज़्यादा तो नहीं, मैंने थोड़ा बहुत काम किया है। और इसमें एक पिपेट होल्डर होता है और ये पिपेट होल्डर वगैरह उसके बनाने के अलग से इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं, जिससे आप सिंपल पिपेट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह के इंस्ट्रूमेंट। होल्डर बना सकते हो, नीडल बना सकते हो, दोनों बना सकते हो, माइक्रोफोर्स और माइक्रो मैनिपुलेट तो उससे आप ये इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते हो। माइक्रोस्कोप के नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पे जो है आप उस ड्रॉप में एम्ब्रियो रखा हुआ है। एक तरफ से एम्ब्रियो को हम पकड़ लेंगे होल्डिंग पिपेट से, और दूसरी तरफ से जो सर्जिकल ब्लेड होती है उससे उसको काट और काट के बाद में उसका केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे कि वो एकदम दो अलग अलग एम्ब्रियोज में कन्वर्ट हो जाता है। Depending on the development stage of an embryo, splitting can be done using either blastomeria biopsy for previous stage embryos or bisection for morular blastocyst stage embryos. ये भी एक एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसमें काफी प्रिसीजन की जरूरत होती है, काफी प्रैक्टिस चाहिए होती है। सिर दर्द करने लग जाता है, एक दो घंटे बैठा रहता था। कभी ये जो एम्ब्रियोज तो हमारे पास नहीं होते थे, उस साइड से हम करते थे, उस साइड को होल्ड करने की कोशिश करते हैं, फिर इसको यूज करते हैं तो ये यहाँ से कट जाता है, कभी ये इससे इस पिपेट के पास आ जाता है पूरा, तो थोड़ा प्रिसीजन चाहिए होता है। तो इस तरह की असेंबली में तो थोड़ा मुश्किल होता है। आजकल क्या बहुत एडवांस इसके वर्जन आने लगे, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे देखना है और यहाँ पे देखते देखते आपको हैंड आई कोऑर्डिनेशन चाहिए। जैसे एंडोस्कोपिक सर्जन भी तो वो स्क्रीन पे देखता हुआ एंडोस्कोप को पास करता है, तो उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है, तो वो आपको थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा और उसके बाद आप ये प्रोसीजर कर सकते हैं। ये वीडियो यहाँ पे तो चलेगा, लेकिन मैं आपको आज करेंगे। Then in vitro fertilization. Infertility in humans with problems of male oligospermia and of female tubal blockage created interest in fertilizing the gametes outside the body, and Steptoe and Edwards started collaborating with human IVF research in 1968. In 1977, Steptoe and Edwards successfully carried out a pioneering concept, which resulted in the birth of the world's first baby to be conceived by IVF, Louis Brown, on 25 July 1978 in Oldham General Hospital, Greater Manchester, UK. IVF वैसे हम डिटेल में थोड़ा उसके ऊपर भी एक अलग से लेक्चर है, we will talk in much detail. But IVF जो एनिमल्स में किया जाता है वो किया जाता है बेसिकली for producing a large number of embryos. और large number of embryos आपको क्यों चाहिए? आपको ट्रांसजेनिक बनाना है, आपको सोमैटिक सेल न्यूक्लियस ट्रांसफर करना है। 1 in 10,000 results into a successful transgenic. तो आपको large number of embryos चाहिए। 10,000 embryos में आप जीन घुसाने की कोशिश करोगे तो एक सक्सेसफुल होगा, एक सक्सेसफुल एम्ब्रियो में कन्वर्ट। मतलब टेक्निक अभी और रिफाइनमेंट की तरफ जा रही है, लेकिन इस आपको बहुत सारे एम्ब्रियो चाहिए। और अगर आप सुपरओवुलेट करके एम्ब्रियो निकालोगे तो सुपरओवुलेशन में यू आर डिस्टर्बिंग द फिजियोलॉजी ऑफ द एग। एंड an easy approach is obtaining ovaries from the abatement। और जो भी काम सीखना चाहते हैं, मेरे पास मेडिकल के लोग भी आते रहे हैं सीखने के लिए IVF का काम, तो उनके लिए हम क्या बस ओवरीज मंगा लेते थे। उनको कहते भैया
मैडम आप इसमें से लाइट एस्पिरेट करो, ड्रॉप में डालो और आंखों से देखो कहाँ है और फिर उसको उठाने की प्रैक्टिस करो। होता क्या है, आपने पिपेट में लिया और पिपेट यूं अगर यूं छोड़ दिया तो वो इसमें पिपेट में ऊपर चला जाएगा, वो जो आगे उसकी टिप लगी है उसको क्रॉस करके उस पिपेट के अंदर ऊपर चला जाएगा और फिर वो वापस नहीं आएगा। एम्ब्रियोज के लिए हम जब पिपेट से काम कर रहे थे नए नए थे, यूं छोड़ा और वो एम्ब्रियो पिपेट में चला गया, पूरी पिपेट खोल ली हमने और उसमें डाल दी, फिर भी नहीं मिला, तो मतलब बड़ी मुश्किल हो जाती है। थोड़ा प्रिसीजन चाहिए होता है, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है आपको। कई लोग पिपेट की बजाय सिरिंज नीडल लेते हैं, कई लोग जो है पार्शियल पिपेट लेते हैं, कई लोग एम्ब्रियो एग्जॉटर लेते हैं, कुछ भी ले वो, उनका प्रिसीजन होना चाहिए बस। Then embryo sexing. Embryo sexing, methods of embryo sexing can be categorized as invasive methods, the cytological method or karyotyping, identification of sex chromatin, Y chromosome specific DNA probes, polymerase chain reaction, loop mediated isothermal amplifications, and fluorescence in situ hybridization. Then there are the non-invasive method. The embryo is not subjected to any harm throughout the procedure, using the detection of X-linked enzymes, detection of required antigens, sexing based on cleavage and development. तो ये कई सारे तरीके हैं जिससे एम्ब्रियो की सेक्सिंग की जाती है। लेकिन एम्ब्रियो सेक्सिंग से ज़्यादा पॉपुलर अब आजकल हो गया है स्पर्म सेक्सिंग। You can separate out the X and the Y chromosome during sperms. You can decide the sex of the calf that will be born with conception using that sperm. Or Lloyd Johnson, he is considered he has been given the title Father of the Universe. He put in 65 years of research. 65 साल लैब में बैठा, बाहर निकला तो उसको जब उसकी ये सक्सेसफुल हुई फ्लो साइटोमेट्री, तो उसको पत्रकारों ने पूछा आपने शादी नहीं की? बोला तो आप कहाँ रहते थे? बोला लैब में रहता था, खाना वाना कि यहीं आ जाता था, सोना यहीं सो जाता था। तो मतलब he is a very dedicated researcher. 65 साल यही रिसर्च करता, 65 साल, तो 65 साल के बाद में अल्टीमेटली सक्सेसफुल। फिर उसको ऑफर दिया किसी कंपनी ने $600 बिलियन कि आप ये टेक्निक हमें बेचिए, एंड ही रिफ्यूज। उसने कहा भैया मैं जो है जिंदगी तो पूरी मेरी निकल गई, अब मैं पैसे का करूँगा क्या, ये बताओ, पहली बात। दूसरी बात, जिन लोगों ने मेरे को 65 साल तक फंड दिया, मैं ऐसे ही उनका पैसा बर्बाद करता रहा, वो आप उनसे बात करो, मैं ऐसे आपको ये टेक्निक नहीं दूंगा, मैं आपको नहीं बताऊंगा। एंड दैट हैज लेड टू फ्लो साइटोमेट्री, जो टेक्निक उसने डेवलप की थी कि स्पर्म को जो है वो एक डाई डाल के लेजर एक्साइटेशन किया जाता है और फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फ्लोरेसेंस डिटेक्ट करता है डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ डीएनए, और वो सेपरेट हो जाते हैं, वाई वाला इधर चला गया, एक्स वाला उधर चला गया, तो उससे जो है 99 अब कहते हैं 99.9%, पहले लॉयड जॉनसन कहता था 99%, 1% स्टिल देयर कैन बी एन एरर। तो फ्लो साइटोमेट्री और सेक्स सॉर्टेड सीमन, कई कंपनीज जो है वो कहते हैं कि सेक्स सॉर्टेड सीमन अवेलेबल है, जर्सी, एचएफ, साहिवाल, गिर, ये एबीएस वाले दावा करते हैं कि हमारे पास सेक्स सॉर्टेड सीमन है। इंडिया में कई जगहों पर सेक्स सॉर्टेड सीमन अवेलेबल हो गया है, और हरियाणा में चीफ मिनिस्टर ने जो है वो घोषणा कर दी थी कि सेक्स सॉर्टेड सीमन के अलावा आप एआई नहीं करेंगे, लेकिन बाद में उनको विड्रॉ करना पड़ा ऑर्डर। क्यों? कि वो कह रहे फिर मेल होगा ही नहीं तो हमारी ये दिक्कत ही खत्म हो जाएगी, तो बाद में उनको विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि कंसेप्शन रेट्स
using sex sorted semen are very low in adult cattle. They are up to the tune of 30 to 50% in heifers, but they are still 10 to 15% in adult cattle. राजस्थान में भी हमारे जो है मंत्री जी ने आदेश कर दिए कि ये इतनी इतनी डोजेस सारे डॉक्टरों को दे दी जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। अब वो डॉक्टर बेचारे परेशान हो गए क्योंकि 1500 रुपये एक डोज की कीमत थी। 1500 रुपये आप किसी फार्मर से चार्ज करो और उसको कहो भैया हो भी सकती है, कह नहीं सकता। और 4 बार आप 1500 रुपये चार्ज कर लो, 6000 रुपये हो जाए, फिर भी उसको कंसीव नहीं हुआ, तो फिर ये मामला बैठा नहीं। कई डॉक्टरों के बेचारों के जेब से पैसे लग गए, उन्होंने उनको पैसे ले लिए, तो उनको कह दिया तो लगा दो, और वो फार्मर दे नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि फार्मर को ये कहा 1500 रुपये तू देना, उसके बाद जितनी बार लगेगी मैं दूंगा। क्या करें, उस चक्कर में उनके पैसे भी लग गए जेब से। तो सेक्स सॉर्टेड कंसेप्शन रेट, फिर उसमें इंसेमिनेशन करना पड़ता है, डीप ऑन इंसेमिनेशन, जस्ट क्लोजर टू द यूट्रोट्यूबल जंक्शन, वहां पे डिपॉजिट करो तो कंसेप्शन रेट इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। और एडल्ट कैटल में कंसेप्शन रेट वर्ल्ड वाइड पुअर है, वर्ल्ड वाइड पुअर है। आठनों में बहुत सारे बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। प्रैक्टिकल बात यह है, मेरी बहुत हमारे जो गायनेकोलॉजी के उसमें है, उनसे बहुतों से पूछा कि सर हमने 5 बछड़े पहले, कितनी बार ये आई थी जो 5 हुए, कि सर ये मत पूछो, ये मत पूछो, मीन्स द थिंग इज क्लियर। तो सेक्स सॉर्टेड सीमन कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि कंसेप्शन रेट 30 से 40% आता है एडल्ट। 30 से 40% तो हमारा नॉर्मल कंसेप्शन रेट ही नहीं है, नॉर्मल सीमन यूज करते हैं। ओवरऑल हम ओवरऑल की बात करें, एक जगह कोई आ सकता है। रिसर्च में कहते हैं ना कि अगर आपके रिजल्ट 100% आ रहे हैं तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो आपका डाटा साइज बहुत छोटा है, आपने 5 गायों में किया, 5 में रिजल्ट आ गया, इट्स पॉसिबल। और अगर आपका डाटा साइज बड़ा है तो इसका मतलब आप सरासर झूठ बोल रहे, आपने डाटा मैनिपुलेट किया। 1000 एनिमल में वो रिजल्ट 100% आ ही नहीं सकता, बायोलॉजिकल सिस्टम में आ ही नहीं सकता। अमेरिका में एक स्टडी में मीन कंसेप्शन रेट फॉर हीफर्स वाज 56%, for conventional and 39% for sex semen. Conventional semen से 56%, 39% sex semen से। Corresponding conception rates for cows were 30 and 25. तो मतलब conception rates are still very low, and we have a low number of sperms available per dose. हम यहाँ पे 10 मिलियन यूज करते हैं नॉर्मल, उसके अंदर 10 मिलियन मिनिमम होना चाहिए, तो 30 मिलियन रखते हैं कि 10 मिलियन 15 मिलियन मान लो ब्रीजिंग में खत्म हो जाए, और 15 मिलियन में से 2-5 मिलियन और खत्म हो जाए, तो भी 10 मिलियन मिनिमम एक उसके लिए डोज है। इसमें 1 to 2 मिलियन भी स्पर्म्स होते हैं, तो आपको बहुत डीप यूट्राइन इंसेमिनेशन करना पड़ता है। तो सेक्स सीमन हैज ए प्रॉमिस, बट many things still need to be resolved until we get conception। और इंडिया में हीफर की एआई होती बहुत कम है, हीफर का तो उनको पता ही नहीं चलता, वो अपने आप कंसीव हो जाते हैं। जो एआई मैक्सिमम होती है वो एडल्ट कैटल की, एडल्ट कैटल की एआई में कंसेप्शन रेट पुअर है, इसलिए कोई ज़्यादा अभी तक आज की तारीख तक कोई ज़्यादा प्रॉमिस दिखाई नहीं देता। मेरी टाइम्स टू कम we will have more improved conception rates with more improved the sperm integrity or maybe whatever it is. Then we see intracytoplasmic sperm injection and we give gamete intrafallopian transfer, shift zygote intrafallopian transfer। अब इनमें करते क्या है, हमने कुछ कोशिश की कि एक स्टूडेंट को काम कराने की उससे, बट फिर लगा कि यार इसमें जो है बहुत मुसीबत है, पूरा हो जाएगा, डिग्री डिले हो जाएगी, तो छोड़ देंगे दूसरा काम। हमारी टेंडेंसी ये रहती है कि छोरे का डिले नहीं होगा कि 2 सेमेस्टर और लग गए, 3 सेमेस्टर लग गए, नो, टाइम पे डिग्री करो, टाइम पे करो। और ऐसी
कोई नोबेल प्राइज नहीं मिलने वाला कोई रिसर्च से, चोरी की रिसर्च से, तो बेचारे को क्यों करते हो, रिसर्च करने को क्यों करो ना। तो इसी जो है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म रिएक्शन, उसमें किया क्या जाता है कि पहली बात तो आपको स्पर्म्स का नंबर मिलता है, स्पर्म्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा, स्पर्म्स को कैपेसिटेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको स्पर्म्स को इमोबिलाइज करना पड़ेगा टेम्पररी। उसके लिए कुछ केमिकल्स होते हैं तो डालते हैं तो वो इमोबिलाइज हो, क्योंकि जब आप उस पिपेट में उसको लेओगे अंदर खींचोगे तो एक ही जगह अगर 4 स्पर्म आ गए तो आप उसको घुसाओगे तो भी बेकार हो जाएगा, पॉलिश करने की इट विल बी यूजलेस। तो उसमें थोड़ा मतलब थोड़ा सा प्रिसीजन चाहिए होता है, व्हिच रिक्वायर टाइम टू लर्न दैट प्रिसीजन। वो एक उठाते हैं 20 एक आ जाते हैं, उसमें 20 एक को बाहर निकालते हैं तो एक भी नहीं रहता, धीरे धीरे करते हैं कि वो चलो ये इतने निकल गए, लास्ट में वो 3-4 होते हैं वो भी निकल जाते हैं, फिर वापस से ले लो फिर एक नहीं आता, या एक इतनी सी दूरी पे आके पिपेट में रह जाता, फिर आप उसको पिपेट को हटा लो तो फिर ये आ जाएगी। मतलब कई सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो जो इक्सी वगैरह करते हैं उनको तो पता है, लेकिन हमने भी थोड़ा प्रयास किया था इक्सी करने, तो इससे पता चला कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं एंड यू नीड प्रिसीजन एंड यू नीड बेटर इंस्ट्रूमेंटेशन जो मैंने आपको बताया नारसिकी वाली जो उससे बहुत मुश्किल होती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी नीडल टूट जाती है, दिक्कत वाले काम। अब जो है कंप्लीटली डिजिटलाइज्ड आ गई और उसमें आपको स्क्रीन पे दिखता रहता है, आपके नीचे बटन्स को खाली प्रेस करना है, इधर लेना है तो इसको करिए, धीरे धीरे करते रहिए, वो अपने आप मूव होती रहेगी। और उसके बाद इसी के लिए आपको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म को अंदर घुसाना होता है और ए oocyte containing the first polar body, उसमें आपको इंजेक्शन पिपेट से उस स्पर्म को अंदर घुसाना। ये वीडियो मैंने आपको दिखाई दिया इसी वाला। क्योंकि कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म के बारे में बहुत कम पता है, इक्वाइन स्पर्म, तो इक्वाइन में एक्सी जो है वो काफी हुई है एंड होल्स हैव बीन बॉर्न बाय इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म। I don't know about the birth of any cow or any pigs भी हुए हैं, but I don't know about it other species, उसमें क्या स्टेटस है। और ये उन्होंने अपना प्रोग्राम बताया कि इसे हम कैसे करते हैं मेयर्स में, और ये डॉक्टर पामे हैं जिन्होंने ये सारी सेटअप कर रखा है इसे। फिर दूसरी टेक्निक जैसे कि गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इंट्राफॉलिकुलर oocyte ट्रांसफर, zygote इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। So, gavin intrafallopian transfer is a 3-step procedure that involves removing the eggs, combining them with the sperm, and then immediately placing them in the fallopian tube where the egg is fertilized. तो fertilization बाहर नहीं करते, combine बाहर करते, और फिर उसको fallopian tube के अंदर रखते। But again, placing this in the fallopian tube would require proper instrumentation, endoscope guided instrumentation, या फिर आप सर्जरी करोगे नहीं तो वहां तक पहुंचोगे कैसे। Then somatic cell nucleus transfer 1997 से पहले clone was defined as a group of identical group of cells, tissues or even organs derived from a common origin. That was it. लेकिन 1997 में जब डॉली का बर्थ हुआ तो ये डेफिनेशन चेंज होनी शुरू हो गई। It included the somatic cell nucleus transfer. रॉसलिन लेबोरेटरीज में जो पैदा हुई थी डॉली यूके में एडिनबर्ग में, and
SCNT is a laboratory technique that involves the transfer of the nucleus of the somatic cell into an enucleated egg cell of the oocyte. SCNT procedure involves three major steps. enucleation, आपको इस सेल में ट्रांसफर करनी है, दूसरे सेल का न्यूक्लियस उसका पहले न्यूक्लियस निकालना पड़ेगा, फिर फ्यूजन दूसरे का उसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, then activation. After removing the oocyte nucleus, the donor cell nucleus is injected or fused with the enucleated oocyte before the reconstructed embryos are activated. तो केमिकल एक्टिवेशन भी करते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन भी करते हैं, कई प्रकार के एक्टिवेशन, मुझे उनकी डिटेल्स अब आई डोंट रिमेंबर, आई हैड अबाउट इट बट आई डोंट। तो उससे जो है सोमैटिक सेल न्यूक्लियस ट्रांसफर करते हैं, दे आर डेवलपिंग व्हाट इज नोन एज ए। और बहुत सारे देशों में ह्यूमन क्लोनिंग के बैन है because they thought that there can be a misuse of this technique. ये उसका जो है आइडेंटिकल कॉपीज, क्लोन मींस आइडेंटिकल कॉपीज, एडल्ट फीमेल और सेम से फाइब्रोब्लास्ट और फिर उसका न्यूक्लियस निकाला, उसमें डाला, सेल फ्यूजन किया, सेल डिवीजन कराया, अर्ली स्टेज एम्ब्रियो को जो है फिर रेसिपिएंट में ट्रांसफर किया और बाद में जो पैदा हुई वो थी डॉग। So likewise, the somatic cell cloning can be done. And then a transgenic. Transgenic is a individual carrying an extra gene introduced by intentional human intervention. Transgenic is a individual carrying an extra gene introduced by intentional human intervention. आदमी ने जबरदस्ती एक जीन उसमें घुसा, और क्यों घुसाया? ताकि वो बाद में ह्यूमन थेरेपी में कोई काम आ सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, a goat was produced carrying an extra gene which was for this aplastic anemia, which was helpful in cure of aplastic anemia. तो वो जो बकरी पैदा हुई उसका दूध जो पिएगा उसका aplastic anemia ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रांसजेनिक बनाए जा रहे हैं। And how transgenic generation of transgenic cells, fusion of an enucleated oocyte और उसके बाद एक्टिवेशन, और एक्टिवेशन करने के बाद ट्रांसफर, और ट्रांसफर के बाद जो उसकी बर्थ होती है। तो बहुत सारे इस के अंदर जो है कई सारे अप्रोचेस यूज होते हैं, जीन प्रोडक्शन, जीन नॉकआउट, कई तरह की मतलब अप्रोचेस यूज होते हैं। बियॉन्ड माय टू एक्सप्लेन ऑल दोस। तो ये कुछ तरीके हैं। फिजिकल ट्रांसफेक्शन, gene of interest is directly injected into the pronucleus of a fertilized ovum. Chemical transfection, the target DNA is taken up in the presence of calcium phosphate. The DNA and calcium phosphate co-precipitate, which facilitates DNA uptake. Retrovirus mediated gene transfer. Retrovirus have the ability to infect the host cells. They are used as vectors to transfect the gene of interest into the target gene. And then viral vectors. Viruses are used to transfect rDNA into the animal cell. तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनके बारे जिससे जो है ट्रांसजेनिक बनाया जाता है। This is how the transgenesis is being done, and ultimately the transgenic embryo has to be implanted in the mother's womb. एक वीडियो आपने भी देखा होगा कहीं कि ऑस्ट्रेलिया में लैब बनाया और उसमें बच्चे की पूरी ग्रोथ जो है वो लैब में ही हो रही है। इट्स ऑल फेक, नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो ट्रांसजेनिक उस लैब में ग्रो कर लेते ना, मदर की यूज से क्यों करते। वीडियो है, आपने किसी ने देखा होगा, नाम से
That's not possible. Growing a embryo without the mother's uterus is not possible. Till date. आने वाले टाइम में पता नहीं क्या हो सकता है, बट अभी तक कुछ नहीं। और एक बात और है, जब हम नेचर के अगेंस्ट जाते हैं तो नेचर अपना रिवेंज लेती। डॉली जो है, क्योंकि सारी कुछ आपने सुना होगा आईवीएफ से जो बछड़ा या जो भी पैदा होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। कारण क्या है कि वो मदर के नेचुरल एनवायरनमेंट की बजाय उस मीडिया में रहता है जिसमें इतने सारे सप्लीमेंट्स होते हैं, तो वो उसकी ग्रोथ को बहुत एनहांस कर देते हैं और कुछ चीज़ें तो ऐसी कर देते हैं जो आपके बाद में कंट्रोल में नहीं। डॉली डाइड एट द एज ऑफ 2 और 3 इयर्स, क्योंकि वो 20 साल जितनी बड़ी हो गई 3 साल में। तो नेचर के अगेंस्ट जा तो रहे हैं, पता नहीं इट विल बी हेल्पफुल और इट विल कॉज हवॉक, वी डोंट नो। कई सारी ह्यूमन बीमारियां हैं जिनके इलाज के लिए ट्रांसजेनिक आए, जैसे सिकल सेल एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। इनके लिए कुछ के लिए तो पेटेंट भी जारी हो चुका है यूएसएफडीए, खासतौर से सिकल सेल एनीमिया एंड एप्लास्टिक एनीमिया, इसके लिए पेटेंट जारी है। और जो बकरी जो बनी थी पहली ट्रांसजेनिक बकरी, जो कि इसके लिए एप्लास्टिक एनीमिया ठीक करने की प्रॉपर्टीज थी उसके दूध में, उसकी कीमत थी $10 मिलियन, $10 मिलियन हो जा रहा है। Then biofarming, BHARMING, biofarming, growing organs in animals for human use। कहते हैं सुअर का हार्ट जो है वो आदमी के हार्ट से मिलता है और थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है, इसीलिए मेरे ख्याल से सुअर भी कुछ भी खा लेता है और आदमी भी कुछ भी खा लेता है, मतलब वेज भी खा लेता है, नॉन वेज भी खा लेता है, कुछ भी खा लेता है। तो वो अगर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए, जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया जाए, उसका हार्ट ह्यूमन हार्ट के ट्रांसप्लांटेशन के लिए काम में लिया जा सकता है। तो इस पे बड़ी रिसर्च चल रही है, कुछ हार्ट ट्रांसप्लांट हुए भी हैं सक्सेसफुल, और होपफुली मे बी पिग्स आर ग्रोन फॉर हार्ट ट्रांसप्लांट। हार्ट ट्रांसप्लांट की जो हॉस्पिटल होगी उसमें एक पिग यूनिट होगी, तो हो सकता है वहाँ बैठने का कुछ कोर्स हो। जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग्स जो है वो 11 और 57 साल के ओल्ड एज में पहली बार ट्रांसफर किया था और पेशेंट डाइड ऑन मार्च 2020। देखिए एक बार तो बच गया ना, और ह्यूमन हार्ट के लिए तो डोनर नहीं मिलता ना, हार्ट ट्रांसप्लांट करना तो डोनेट कौन करेगा, किडनी विडनी तो कभी कोई एक मेरी ले ले, तो हार्ट तो एक ही होता है। आगे वापस की इसका सिंक्रोनाइजेशन भी एक असिस्टेड रिप्रोडक्शन मैं मानता हूँ, आई डोंट नो वेदर द लिटरेचर एग्रीज और नॉट, बट अगर आप ओवुलेशन इंड्यूस कर रहे हो तो वो भी असिस्टेड रिप्रोडक्शन, और अगर आप ओवेरियन सिस्ट का ट्रीटमेंट कर रहे हो तो भी आप असिस्ट तो कर ही रहे हो, तो असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी तो हुई। So you can refer these books, Reproductive Technologies in Animals and Animal Biotechnology, Reproductive Biotechnology in Animals, Assisted। ये मैपरटॉप पर हिस्लर का ये जो रिव्यू है ये बहुत अच्छा है, अवेलेबल पब्लिश्ड इन रिव्यू साइंस OIE का, and you can refer this review for knowing the different assisted reproductive technology। अब इसमें मैंने और दूसरी टेक्नोलॉजीज की बात नहीं की है, जैसे कि स्टेम सेल्स। कि स्टेम सेल्स क्या होता है
pluripotent and totipotent cells that have infinite regeneration capacities. और उसका यूज मेडिकल में स्टार्ट हो चुका है. They are using stem cell for fracture repair. पाँव टूट गया ना, तो स्टेम सेल डाल के एक छोटी सी पट्टी बांध के घर जाके लेट जाओ और कल सुबह से घूमना फिरना, ऐसा कहते हैं. आई डोंट नो द ग्राउंड रियलिटी, बाकी ऐसा लोग कहते हैं कि स्टेम सेल बस वो लगा दिए और वो फटाफट उस जगह को कर देंगे और आप परसों से तो भागने लग जाए. कुछ तो होता है, कुछ वो खासतौर से ये 2 यूनिवर्सिटीज में वो बहुत ज़्यादा फैलता है. फर्जीवाड़ा बहुत जल्दी फैलता है. 2 यूनिवर्सिटीज है ना, फेसबुक यूनिवर्सिटी एंड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं आजकल. तो उसकी हम बात नहीं करें, उसकी डिटेल्स भी इतनी ज़्यादा है कि मतलब इट्स बियॉन्ड माई कैपेसिटी टू एक्सप्लेन इन वन क्लास along with the other assisted. So any question or query regarding this? कोई question? Anything you want to add or supplement to my talk? So transgenic animals, people is completely. I don't know the बहुत सारे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल, बहुत सारे. तो कि अगर मैं उस चक्कर में पड़ जाऊंगा तो मेरे को बहुत सारे ढूंढ के यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, है ना. ट्रांसजेनिक्स पे आपको रिव्यू मिल जाएंगे फिजियोलॉजी में, एनिमल रिप्रोडक्शन साइंस में. उनका जो ये खासतौर से जनवरी इश्यू होता है, जनवरी इश्यू जो होता है ना, अभी कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई. तो अभी आप लोग कोई चाहते हैं तो MBSc PhD वाले यू कैन सबमिट सम एब्स्ट्रैक्ट फॉर इंटरनेशनल एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी सोसाइटी की कॉन्फ्रेंस होती है हर साल. इस साल पता नहीं कहाँ है, बाकी हर साल कभी US में, कभी कनाडा में, कभी कहीं होती है. तो एंड दोज एब्स्ट्रैक्ट्स एक्सेप्टेड फॉर पब्लिकेशन आर पब्लिश्ड इन आइदर इन फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्शन फर्टिलिटी एंड डेवलपमेंट. तो आपको अभी 30 जुलाई उसकी लास्ट डेट होती है शायद, डोंट रिमेंबर, अभी 3-4 साल से मैं टच में नहीं हूँ. 30 जुलाई उसकी लास्ट डेट होती है. आप उसमें एब्स्ट्रैक्ट सबमिट कर सकते हैं और अगर एक्सेप्ट हो जाए तो आपका वो एब्स्ट्रैक्ट छपेगा. उसमें हालांकि शर्त होती है कि आप अगर नहीं आते हैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करने तो आपको 3 साल के लिए डिबार कर देंगे पोस्ट जर्नल में पब्लिश करने से. तो हम कौन से इतने बड़े साइंटिस्ट हैं कि हमारे धनानंद पेपर उसमें भेज रहे हैं. कर दो 3 साल के बाद, 6 साल कर दो, दिक्कत क्या है, दूसरे जर्नल में भेज तो भेज सकते हो. दैट विल ऐड टू योर वैल्यू, खासतौर से जो MBSc PhD वाले हो विल बी हेल्प. कोई क्वेश्चन नहीं, मैं इसको लाइव करूँगा. सो थैंक यू वेरी मच.